مشتاق احمد بخاری صاحب کے وصال کو 40 دن سے قبل ہو گئے ہیں، تو جو سیاسی موومنٹ جو الیکشن کا دور تھا اس کے بعد پھر اس پہ بہت سا لگ گیا تھا، تو ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر پائے۔ 8 تاریخ کو رزلٹ آیا اور اس سے پہلے 5-6 دن پہلے 2 تاریخ کو بخاری صاحب کا جو وصال ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر پائے۔ وہی آج 40 دن کے قبل آج سب ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم جو ڈیزرو کرتی ہے سرنگ روڈ کی عوام، ہم ان کا تشکر ظاہر کریں۔ اس کے لیے آج ہم ڈاکگنگا میں جو بخاری صاحب سے جڑے لوگ تھے وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا موقف ہے ایک منٹ چلیں ٹھیک سٹارٹ۔ اویس صاحب، کیا میسیج رہے گا آپ کی جو جتنے بھی یہاں سرنگ روڈ کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہیں یا آپ کے جتنے بھی چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا میسیج رہے گا آپ کا؟ جی، سرنگ کوٹ کی عوام کا اور مشتاق بخاری صاحب سے جو منسلک لوگ تھے ان کا تو جتنا شکریہ ادا میں کروں وہ کم ہی ہے، بٹ ان کو میں یہ بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے بن پایا میں کوشش کروں گا کہ جو پیار محبت اخلاق خلوص سے انہوں نے میرے خانوادے کو ٹریٹ کیا آج تک، ان کے ساتھ جو ان کا برتاؤ رہا ہے حسن اخلاق، اس کا میں حق ادا کر پاؤں، یہ میری کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں جو مجھ سے بن سکا میں کوشش کروں گا ہوگی۔ بخاری صاحب کے جانے کے بعد کافی خلا پیدا ہوئی ہے اور کافی لوگوں کی جو توقعات ہیں آپ پر ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، اس کو 2 طریقے سے دیکھتا ہوں میں۔ ایک تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، پہلے تو احساس کمتری ہوتی ہے کہ اس قابل میں ہوں نہیں کہ جس شخص کی جگہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ بخاری صاحب کا جو کہتے ہیں نام البدل، اللہ تعالیٰ کرے ہم میں سے نکلے، ہم کوشش کریں گے بھرپور کہ ان کی کمی پوری تو نہیں کر پائیں گے، بٹ جہاں تک ہم سے ہو پایا کوشش کریں گے لوگوں کی جو غربا عوام ہے، جو مسکین عوام ہے، کیونکہ بخاری صاحب کا بھی زندگی بھر سبھی لوگ واقف ہیں کہ انہوں نے اس قوم کے لیے وہ پریشان ہوتے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان سے بن سکا انہوں نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب بطور ان کا بیٹا میرا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلوں اور کوشش کروں گا میں انشاءاللہ، یہ میں بھروسہ دلا سکتا ہوں۔ خلق کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی سوالیہ محفل روحانی محفل انہیں نصیب فرمائے، اور سرکار کا اور پنڈت پاک کا اور صحابہ کرام کا اور اولیاء اعظام کا دست شفقت ان پر، اور ان کے اہل خانہ جتنے بھی ہیں، ان کے پسر دختران اور برادران اور قبیلہ جتنا بھی ہے، میری سب کے لیے دعا ہے کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نچھاور کرے، رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس دکھ کو وہ برداشت کر سکے۔ اور ساری محفل سے میری گزارش ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اپنے عبدالمجید صاحب نے ایک بات کہی، غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہم اسی کو گنتے رہیں گے تو پھر بھی ہمارے لیے آئندہ کے لیے بھی تو ہمیں کوئی راہ نکالنی ہے، اور راہ نکالنے کا ایک ہی دنیا میں طریقہ ہے، یاد رکھو سب، میں نہ کوئی فلاسفر ہوں نہ کوئی لمبی چوڑی بات ہے، دنیا کے پورے حالات واقعات دیکھو، جہاں یونٹی ہے، جہاں اتفاق ہے، جہاں بھائی چارہ ہے، وہی لوگ قابض ہیں دنیا میں، وہی لوگ فتح یاب ہیں، اور وہی لوگ اقتدار کو پڑھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حامی وہی قدردان ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، ہم میں جو منتشر ہو جائیں گے، نااتفاقی کا شکار ہوں گے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی آئے گی، اور ہمارا سماج میں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہمیں ڈبل سزا ملے گی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اویس بخاری چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کو یہ میں تو سمجھتا ہوں ذہن بوجھ ہے، لیکن اس کو اس سیاست سے کوئی زیادہ لگن، وہ ہوتا ہے چمٹنے والی بات، وہ نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، واقعات ایسے ہیں کہ ان کو ہر حالت میں خدمت خلق کے لیے
नौजवानों के जज्बात की कदर करने के लिए और इस नैया को, इस किश्ती को चलाने के लिए एक मला की तरह इनको उतरना पड़ेगा कश्ती में, और समुद्र में ये कश्ती चलानी पड़ेगी और साहिल तक लगाने की कोशिश करनी चाहिए उन्हें। तो मेरी दुआ है कि आप सब खिलें फलें फूलें और अल्लाह ताला आप पर रहम करे, फजल करे और आप मुतीद हैं। और ये जो नाइतवाकी के जंजीर हमने पहने हैं, अब दुआ करो अल्लाह ताला ये हमसे खत्म करे और हम एक दूसरे के साथ खुश असलूबी से मिलें। तो मेरी यही दुआ है कि हम इत्फाक से रहें और बुखारी साहब के किबले कबीरा को अल्लाह ताला सब्र और नियामत बदलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहायत अदब गुजारिश करूंगा तमाम मुकर्रीन से, जो भी मुकर्रीन वक्त का खास ख्याल रखें, क्योंकि घनी बहरीस है मुकर्रीन की, तो हम चाहते हैं कि हम तमाम लोगों के इज़हार ख्याल सुनें। इसके बाद मैं शबीर साहब कह रहे थे कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज की महफिल में मौजूद यहाँ पे विनय शर्मा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल से हमें नवाजें। सदर महफिल जनाब फवाद अहमद आज़ाद साहब, अवैध साहब, हमीद साहब और सम्मानीय मंच जितने भी यहाँ लोग आप आए हो, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई मिर्ज़ा साहब ने एक बात कही कि हमें दुख बुखारी साहब के जाने का है, इलेक्शन के हारने का नहीं है। और बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। इलेक्शन होते रहते हैं, सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बुखारी साहब ने जो इस कौम के लिए, जो हम पहाड़ियों के लिए किया, वो एक मिसाल बन के रह गई है। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग हमें तोड़ने में कामयाब रहे और हम टूटने में कामयाब हुए। ये हमारी एक बदकिस्मती कहें या गलती कहें। और जो हो गया, उन चीज़ों को दोहराने से बार बार कोई समाधान तो निकलने वाला नहीं है। लेकिन आगे की रणनीति क्या है, आगे हमें कैसे करना है, कैसे चलना है, इस पर थोड़ा सब मंथन करें, विचार करें। और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले वक्त में जो आज हमने जो किया है, इससे थोड़ा अलग हो करके, दलगत नीतियों से ऊपर उठ करके, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हो गया, वो हमारे पास नहीं आया, वो हमारे पास गया, इन चीज़ों से हट करके एक जहन के साथ जो अच्छी चीज़ों को हम अडॉप्ट करें और बुरी चीज़ों को हम दूर करें अपने आप से। और इसी के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 24,000 के लगभग जो हमें वोट मिला है, उन 24,000 लोगों का, और जिन लोगों ने नहीं भी दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मंच से कि आप सब ने हमें जो ये इज्जत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिना किसी ताकीर के आज की मुलाकात तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई काजी इरशाद साहब से, लेकिन उससे पहले तमाम वो लोग जो आज की इस महफिल के दरमियान में यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए, मैं एक चीज दोबारा से वाज़ा करना चाहूंगा क्योंकि कुछ मौजूद मेहमान अभी भी यहाँ पहुंचे हैं कि आज का ये जो इजलास है, ये एक रस्म शुक्रिया और ताज़ीती इजलास है। इसी सिलसिला में आज के रुहे रवा सैयद उवैस बुखारी साहब की तरफ से ये कॉल दी गई थी कि सिर्फ रस्म शुक्रिया और ताज़ीती इजलास की मुनासबत से इस महफिल का इनेकाद किया गया। मैं तमाम लोग जो दौरान महफिल यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे पहुंचे। मैं काजी इरशाद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल से हमें नवाजें। वो यहाँ पे मौजूद नहीं, बाहर चले गए। मैं इसके बाद जनाब हाजी असद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल से नवाजें। काबिल इज़्ज़त व काबिल एहतराम आज की महफिल के सदर जनाब आज़ाद अहमद साहब,
मेरे अजीज मेरे बरकतदार पीर अवैस साहब, जनाब सरदार अब्दुल हमीद मनाज साहब, अजहर मनाज साहब, सैयद नजर माहिउद्दीन शाह साहब, पीर शबीर शाह साहब और जितने पीर अल्ताफ साहब, जितने इस मंच पर बैठे हुए मेरे साथी या मेरे बुजुर्ग, हमारा गर्जो गायब जो आज बैठने का वो ये है कि हम यहाँ पर इस महफिल में ताज़ियत की रूह से बैठे हैं कि किबला जनाब बुखारी साहब आज हमारे में नहीं हैं। उन्होंने बड़े ज़ोर से, बड़े शौक़ से, बड़े अच्छे तरीके से जो पिछला टाइम निकाला और आज तक जो मतलब जहाँ तक वो उन्होंने इलेक्शन का ये मुहिम में रहे, तो हमें ये वैसे दुख है कि बुखारी साहब आज हम में नहीं हैं। वो हमारे तमाम जितने भी इससे कबल जितने भी काम थे वो उसको, चाहे वो जम्मू में बैठ के करते थे, चाहे वो पुंछ में बैठ के करते थे, चाहे वो कहीं भी बैठ के करते थे, लेकिन हम फख्र महसूस करते थे कि बुखारी साहब जिंदा हैं, हम फोन करेंगे, इंशाअल्लाह वो लब्बैक करेंगे और हमारी कॉल पर बात होगी। आज हमें दुख इस बात का भी है कि मेरे ये अजीज मेरे बरकतदार अवैस बुखारी साहब, हम इनको आगे ला रहे हैं, ये करेंगे काम, लेकिन बात जो बुखारी साहब की थी वो अभी होने वाली नहीं है। हमें पिछले दिनों में भी बहुत मजबूरियां आई, परेशानियां आई। हमारी जो कौम जितनी भी है, जितने पहाड़ी लोग थे, अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। 69,000 वोट थे हमारे और 69,000 से हम ले रहे हैं 23-24,000। ये बात से शर्म बात है हमारे लिए। हम कितना मतलब ये इसको दुख से ये कहेंगे कि कई दिन तक तो हमें खाना हजम ये नहीं हो रहा था कि हमने किया क्या और हुआ क्या है। हम ये अपने एस्टिमेट लगा रहे थे कि हम 10,000 15,000 की लीड देकर जीत रहे हैं, लेकिन इस कौम ने अपने आप को गैरतमंद साबित नहीं किया। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो भले लगती रहे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर झांक के हमेशा देखना चाहिए कि गैरत का एक लम्हा भी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, इलेक्शन वो था जो कल तक हुआ है, जिसका हमने बगैरत या बेगैरती तरीके से सवाल का जवाब हमारे ये साथियों ने कहा है कि हम मिसाल देंगे रजौरी की, हम मिसाल देंगे। क्यों देंगे हम मिसाल रजौरी की, जबकि हम 69,000 लोग मौजूद थे। हम रजौरी को क्यों लेंगे आपके सामने? रजौरी में भी पैसे को आदमी यूटिलाइज न कर सके, इस्तेमाल न कर सके और वो बैंकों में रहे या किसी जगह में रहे, उस असासे का कोई फायदा नहीं होता है। यही हमारे इस असासे का कोई फायदा नहीं है। हम किस लिए इस कौम को गिनती करेंगे? बाजार कौम को गिनती किया जाता है, समझे? तो मैं ये कुछ थोड़ा सा मेरा कहने का लहजा जो है वो अलग ही हो जाता है। मैं तमाम लोगों से ये माफी चाहता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि हक की बात कहने में अल्लाह ताला को राजी रखना है। बंदा नाराज होता है तो होता रहे, मैं अल्लाह को राजी रखूंगा, मैं बंदे को राजी नहीं कर सकता। तो मैं ये कहूँगा कि ये इसलिए मैंने ये कहा है कि हमारी ये जो हमने वोट दिया था बुखारी साहब को, तो बुखारी साहब थे बीजेपी में, तो यहाँ पर हमारा कोई इस किस्म का सिस्टम जो है वो नहीं है कि हम आज किस मुंह से किसको कहेंगे जाओ एसएचओ को फोन करना है जी, हमें एसएचओ के पास चलना है जी, हमें छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूँ, हमें तहसीलदार साहब के पास जाना है जी, हमें डीएसपी साहब के पास जाना है जी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में आज तो सरकार बन चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है और बरसरे इक़्तिदार सरकार है, लेकिन मैं एक बात को बताऊं, यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलाने वाले कुछ ऑफिसर ऐसे हैं, हमारी इस तहसील में ऐसे हैं जो 3-3 साल से यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरे लोगों को ये हकारत की नजरों से देखते हैं। तो हमारे लोग बोलने वाले नहीं और ना बोल सकते हैं। हमारे लोगों के साथ जो इंसाफ है वो नहीं हो रहा है, वो थाने में इंसाफ नहीं हो रहा है, वो तहसील में इंसाफ नहीं हो रहा है, वो किसी जगह पर नहीं हो रहा। लेकिन हमारी इस तहसील में कोई ऐसा नियामत बदल कोई आदमी ऐसा नहीं है कि बुखारी साहब अगर किसी भी ढंग से कहते वो फोन करते कि एसएचओ साहब ये बात है, तहसीलदार साहब ये बात है, तहसीलदार साहब कोई बात मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो ये लोग कहने में इरिटेशन महसूस करते हैं, मैं नहीं करूँगा। मुझे कोई घर से नहीं निकालेगा, ना मैं तहसीलदार से डरूंगा, ना मैं एसएचओ से डरूंगा, ना मैं डीएसपी से डरूंगा, ना मैं किसी एसएसपी से डरूंगा। मैं डरूंगा अपने अल्लाह से जिसने मुझे पैदा किया हुआ है। यहाँ पर लोगों के लिए परेशानियां हैं,
उन परेशानियों को दूर करने के लिए इलेक्शन वही है जो हो चुका है, आज के बाद 5 साल के बाद होगा, लेकिन एक ऐसा शख्स तैयार किया जाए जो हर आदमी की बात सुने और उसके साथ चले और चल के उसकी जो मजबूरी है वो 2 मिनट के लिए उसको हल करे। मैं तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये दुरुस्त है या गलत है? और वो आदमी होना चाहिए जो चापलूस नहीं हो, जो ऑफिसरों का चापलूस हो, जो उनके अंदर भी करने वाला हो, उस ऐसे आदमी की हमें कोई जरूरत नहीं। तो मैं मेरे ख्याल में कुछ लगा चला गया। मैं तमाम लोगों का इस बार शुक्रिया अदा करूंगा और जनाब बुखारी साहब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके न्यामल बदर उन्हीं के घर से, उन्हीं के खानदान से प्यार करे। हम इस पर भी लब्बाइक करते हैं, शुक्रिया करता है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हाजी अफजल साहब अपने ज़रिए ख्यालात से और अपने जज्बात के साथ आज की महफिल में अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। इसके बाद मैं बिला किसी ताख़ीर आज के इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का कि आप लोगों ने ये जज्बा दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल जो है बन चुका है, इसके लिए आप तमाम लोग जो है हमारे बात के मुस्तहिक हैं। मैं आप गुजारिश करूंगा मोहतरम परवेज मनाज साहब से कि वो अपने ज़रिए ख्यालात से हमें नवाजे और वक्त का खास ख्याल। रब्बी शरली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रास्ते पर ये सोचते आए कि मंजिल पर जाकर दम लेंगे और अब मंजिल पूछ रही है कि तुमको कहाँ तक जाना है। सदर महफल मोहतरम सैयद अवैस बुखारी साहब, पीर नज़र साहब, हमीद मनाज साहब, जितने भी बाकी हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अगर सब के नाम लें तो बड़ा मुश्किल है, तवील है। मैंने 3-4 आदमी की तकरीर सुनी है। ये गुजारिश यही है कि हमें बुखारी साहब के जाने का निहायत ही गम है। उन्होंने कौम के लिए जो भी काम किया था उसकी भरपूर वो खला पूरा नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला को मंजूर ही ऐसा था कि ये सारा सिस्टम जो है निज़ाम कुदरत के हाथ में है। अंबिया अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही अपने अपने प्रोग्राम में शामिल हुए और वो इस दुनिया से रहलत फरमा चले गए। तो बुखारी साहब का जाने का हमें निहायत ही दुख है। तो जहाँ तक उनकी शुक्रिया अवैस साहब की तरफ से कि हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का, ये हमारा फर्ज था। शुक्रिया क्यों करते? शुक्रिया तब होता, अब जितने भी हजरात ने कहा है कि हम 70,000 थे तो उसमें से हमें 24,000 का शुक्रिया अदा करना है, बाकी 36,000 कहाँ जाएंगे। तो हम तो ये कहते थे कि आप बुखारी साहब को 24 तारीख को हम मिले 2 बजे, उसके बाद चले गए तो 25 को इलेक्शन था, तो उसके बाद फिर हम जो है उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। 2-3 दिन के बाद जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो गुजारिश यही है कि यहाँ 2022-23 में भी उन्होंने लोगों ने बड़ी तकरीरें की थी, बुखारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। 24 में भी हुआ तो उसका नतीजा यही हुआ कि हमें जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहाँ तक हमारी यहाँ इस वक्त 5 साल, जैसे हाजी अफजल साहब ने कहा, हमें तो जरूरत है ना किसी एमएलए के पास जाने के लिए। हम जान के पास जाएंगे या राणे के पास जाएंगे तो फिर एक तहसील से दूसरी तहसील में एक एमएलए को छोड़कर दूसरे के पास जाने के लिए भी आम आदमी के पास की बात नहीं। तो इसलिए 5 साल के लिए हमें किसी एमएलए की जरूरत पड़ेगी, किसी लीडर की जरूरत पड़ेगी। तो ये खला पूरा करने के लिए अब ये मैदान जो है इसको नए सिरे से ही इसको तैयार करने की जरूरत है, लीडर को तैयार करने की जरूरत है। आप आस्ता आस्ता मेहनत करेंगे तो तभी जाकर 5 साल में जाकर कहीं स्टेज पर पहुंचेंगे। तो हमारी ये परेशानियां बदस्तूर जारी रहेंगी। तो हमें इस वक्त हम कहेंगे नहीं कि हम ये कर सकते हैं 5 साल के लिए, ये आने वाला 5 साल बताएंगे कि आगे क्या रणनीति होगी। मैंने 10 आदमी को फैसलाबाद वालों को कहा सुबह हम चलते हैं, तो उसमें से मुझे मैं एक ही
अब मैं कैसे इतने लोगों की जिम्मेवारी उठा के घूम के भाई फजलाबाद मेरे हाथ में है, सारा कुछ है। लोग जो हैं ये बड़े, हमें अपने बड़ा तजर्बा हो गया है कि बड़ी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो छोटी सी एक मीटिंग रखी थी, ये मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की ताज़ियत भी थी और के 40वें के बाद हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने बुखारी साहब को बगैर किसी कैंपेन के 24,000 वोट दिए। बुखारी साहब एक बुखारी नाम नहीं है, बुखारी साहब एक सोच का नाम है, बुखारी साहब की फ़िक्र का नाम है, बुखारी साहब एक मकाम का नाम है। बुखारी साहब सुरन कोट की शान बान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक शान का नाम है। मुश्ताक बुखारी एक सोच दे के चले गए हैं, एक नज़रिया दे के चले गए हैं, एक इंसानियत को जगा के चले गए हैं और इस कौम को ये बता के चले गए हैं कि हक़ क्या है और हक़ लेना कैसे है। अल्लाह तबारक ताला बुखारी साहब की कब्र को मनवर करे और करवट कट उनको जन्नत नसीब हो व मौलाई। मोहतरम मरहूम सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के फर्जंद सैयद ओवैस बुखारी साहब की जानिब से एक ताज़ीती इजलास और एक रस्म शुक्रिया का इजलास डा बंगलो सुप्रीम कोर्ट में मुनक़द किया गया है, जिसमें भारी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने, नौजवानों ने शिरकत करके मरहूम बुखारी साहब के तईं इसाले सवाब के लिए दुआ की और ओवैस बुखारी साहब की तरफ से तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दौरान इलेक्शन बुखारी साहब के साथ उनका ताउन किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि उनके बताए हुए नक्शो कदम पे मुअज़्ज़िज़ीन नौजवान एकजुट होकर जो है आने वाले वक्त में चलेंगे।